Hello everyone and welcome to my channel. In this video I'm going to discuss with you an important non-fictional work. This is called Discovery of India. And the Discovery of India, it is written by Nehru ji. इससे पहले हमने उनका एक ऑटोबायोग्राफी डिस्कस किया था आपके साथ. And the book The Discovery of India has authored is Jawaharlal Nehru, a country's first prime minister. Is a journey through India history while Nehru was detained at the fort in 1946. Ahmednagar Fort in 1946. He wrote the book in over 5 months with a consistent narrative flow. It is broken up into 10 chapters. So 10 chapters में ये divide है और इसको उन्होंने लिखा है. The Discovery of India is an oddly disjoint connection of historical detail, philosophical hypothesis, and reflective essay on disparate subject wrapped in lyrical prose that frequently reaches artistic height. It is a thesis on Indian history and culture written by Nehru. So it is important. It is thesis Indian history and culture written by Nehru. Catholic and global thinking. He views India as a friendly foreigner. उन्होंने इंडिया को किस तरीके से देखा? फ्रेंडली फॉरेनर की तरह से. The book opening 3 chapters are entirely autobiographical while the nation suffers and starvation and the globe is at war. Nehru is held captive in the Ahmednagar fort. The book's third chapter is the introduction to the discovery of India. ये आपको याद रखना है. Even after the first 3 chapters, Nehru remains central to the story and continue the autobiographical style. We get the impression that Nehru speaks openly and honestly about what he knows and feels. The discovery does not relate the event in Nehru's life outsider the first 3 chapters. फर्स्ट 3 चैप्टर में उन्होंने कुछ अपने बारे में पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखा है. उसके बाद से जितना भी है वो उन्होंने कंट्री के बेस पर ही लिखा है. टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल फीचर्स ऑफ द बुक द डिस्कवरी हैव सेवरल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जैसे कि हर एक बुक की कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो इनके भी वर्क में कुछ वीकनेस है और कुछ इसकी स्ट्रेंथ है. अब वीकनेस और स्ट्रेंथ से आपका क्या मतलब है? वीकनेस और स्ट्रेंथ से क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो जिससे आपका जो माइंड पावर है, जिसको पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज इन्हांस होगी. ऑफ द न्यूमरस स्टेज इन द प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन ऑफ द नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अर्ली डाउन ऑफ 20th सेंचुरी सिविलाइजेशन, ये सब दिखाया जाएगा इसके अंदर है. व्हेन ब्रिटिश इंडिया was on the verge of freedom, किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. According to Nehru work in the discovery of India, Hindu is not mentioned in our earliest writing. The first time it is mentioned in Indian literature is in a tantric word from the 19th century AD. Hindu refers to a people rather than the adherent of specific religion. फर्स्टली जब इन्होंने हिंदू का यूज़ किया वहाँ पे मतलब था कि पीपल, नॉट एनी स्पेसिफिक रिलीजन. हिंदुइज्म वाज इन फैक्ट एन आर्यन रिलीजन. हिंदू रिलीजन को आर्यन रिलीजन भी बोला जाता है. नेहरू जी के बारे में आप सबको इतनी सारी बातें, कुछ बातें आपको पहले से भी नोन टू होंगी. ही एट्रीब्यूट द अर्ली वेदांतास बेसिस फॉर द resurrection of Hinduism. Shankara or Shankaracharya developed a philosophy known as Advaita Vedanta or non-Dvaita. Then he presents Swami Vivekananda, who formed the non-sectarian Ramakrishna mission of the service, and his brother's disciples. It was steeped in history and brimming with pride of India's past.
if we want to know the past, then we have to read something related to our past. So these things or these books help you out, or help me out also, to know our past, to know our India's past. In book, citizen has isolated themselves within their borders. India continued to reflect on its glorious past, while the West embraced forward thinking ideas, contributing later discipline. तो इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी लोगों को दिया है। इंडिया की जो थिंकिंग है वो फॉरवर्ड, उनके आइडियाज़, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। सोसाइटी जो थी वो बहुत डिवाइडेड थी। इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्ट इंडिया डू प्रैक्टिस वाइड स्प्रेड स्लेवरी। अब कहीं पे जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, कहीं पे स्लेवरी थी, मतलब कि दास्ता थी। द कास्ट सिस्टम इन गेंड, और जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। द सेक्सिज्म ऑफ इंडियन वीमेन इज़ अनदर फैसिनेटिंग फीचर मैंशन इन द बुक। सेक्सिज्म मतलब क्या होता है कि इफ़ यू आर हैविंग मेल सेक्स, देन यू आर बिहेविंग एज अ मेल। Few society and patriarchy has given a set of things that if you are a male, then you have to do this work, and if you are a female sex, then of course you have a certain things that you have to follow, and the difference between your dressing, your obeying nature, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन की। सो देखिए, एक एक ऑटोबायोग्राफी से ही, जैसे उन्होंने लिखा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने हर चीज़ को इलाबोरेट किया, जो भी चीज़ उनको ज़रूरी लगी। ही थॉट दैट द सिक्लूशन ऑफ वीमेन और पर्दा हैड halt social advancement. He speak highly for ladies who took part in the liberation struggle, and he mentioned his father Motilal Nehru, women participating in rallies on the street despite his parental love for the women in his family and society. On that time he also elaborated that कि जो women हैं वो रैलीज़ में आ रही हैं, वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वो लिबरल हो रही हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली तक सीमित हैं। तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन की अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और यू अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट ही हैज़ focused on women contribution in the freedom of India. India also moved more and more into the countryside. The British policy caused the population to shift in the opposite direction, from city to village and from industry to farmland. He discussed how the fact that Indians were content with their social lives further discouraged them from pursuing economic health. रिगार्डिंग द इंडियन लैंग्वेजेस, अब देखो उन्होंने लैंग्वेजेस को लेके भी बोला। द इंडियन लैंग्वेजेस एंड आर्ट, नेहरू मैंशन दैट बिकॉज एजुकेटेड मेंबर ऑफ द अपर कास्ट ओनली यूज्ड इट and it was not widely spoken. Sanskrit has long since died out. But in Southeast Asia, in nations like Indonesia, Java, Bali, Cambodia, and Malay, this language and the literature left a remarkable effect. कि यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो काफ़ी एनरिच्ड है, काफ़ी फ्लोरिश्ड है. नेहरू हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली about the illustrations, southern empires and their influence on the development of glory past. उन्होंने illusions, literature, art और architecture सबको present किया. He claimed that we can see a lot of rivers. Now he is focusing on rivers, trade by reading the extant literature. The Jatakas claim that शिप डिपार्ट फ्रॉम बनारस. जटाका टेल्स होती है ना, ये भी कहानियाँ होती हैं, वहाँ से इनको पता चला कि जो शिप है वो अलग होती है बनारस, पटना, भागलपुर एंड अदर लोकेशन, एंड मेड देयर वेज टू सी बिफोर सेलिंग टू सदर्न पोर्ट. And here he also mentioned that the thriving port of Kaveri Patnam
on the Kaveri river in the south are described the old Tamil poetry, silk, muslin, the better type of cloth, cluttery, रग्स, परफ्यूम, ये सब जो गोल्ड, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी कहाँ से? इंडिया से। क्या होती थी? एक्सपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट मतलब बाहर को भेजना। तो हमारा इंडिया इतना फ्लोरिश था कि वो देखो सिल्क, मशूल, क्लॉथ, क्लटरी, अलमोर और एम्ब्रॉयडरीज, रग्स, परफ्यूम्स, गोल्ड, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। Due to the Hindu-Muslim issue at the time, Nehru may have painted a positive picture of Muslim era in English in India. Being a politician, he was well aware that his candid depiction of the Muslim era may accelerate an already continuous situation in the Indian Muslim identified with their invading forefather. The Mughal Empire slowly fell apart. तो उन्होंने इन हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को उसमें इम्पोर्टेंस दी। A throughout account of British control the India in provided in the discovery of India कि how the British company controlled the India. It indicates that the East India Company founded British control in India after initially settling in Bengal. द ब्रिटिश ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड इंडियाज़ कोस्ट लाइन। सबसे पहले उन्होंने वो बंगाल में सेटलअप हुए थे, उसके बाद उन्होंने जितनी भी कोस्ट लाइन है, समुद्री एरिया है, उस सबको कैप्चर किया था, उस सबको ऑक्यूपाई किया था। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश किस तरीके से आए और उनको किस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनी, इसको भी मेंशन किया है अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। Many of Indians, once wealthy and successful, state fell into extreme poverty during the British occupation. Both agriculture and the Indian industry system suffered greatly. इन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं और जो चीज़ें हैं, जो कल्चर है, ऑक्यूपेशन है, वो सब क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रिंस को भी लिखा, द प्रिंस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर फ्यूडल लॉर्ड्स दैट द ब्रिटिश कुड ईजली कंट्रोल। और जो हमारे राजा थे उनकी जगह सामंतों को, दूसरे लोगों को बिठाया गया ताकि आसानी से शासन किया जा सके। इवन थ्रू द रिवोल्ट ऑफ 1857-58, उन्होंने 1857-58 में जो दंगे हुए थे उनको भी मेंशन किया। नेहरू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश planning committee, claiming that the committee goal was to guarantee a sufficient standard of living for the general and economic estimated as per capita income. उन्होंने कैपिटा इनकम और उन्होंने ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली क्या किया, क्रिटिसाइज किया। Some honorable men including Raja Ram Mohan Roy, Chaitanya and Ramakrishna play a crucial part in social and religious reforms. ये भी important है। Some great leaders' mind were stimulously by educated and for the first time बंगाल का जो लीडर है वो इमर्ज होता है, तो इन लीडर्स के नाम याद रखना है। The National Congress, a new leadership. The National Congress, a new leadership style for India political freedom, is also highlighted by the discovery of India. According to Nehru, the old guard under Dadabhai Naoroji was replaced by the new leadership under Bal Gangadhar Tilak, who was more aggressive in जो mobilizing हो रही थी उसमें ये बहुत ज़्यादा aggressive थे। About the Muslim League, Nehru asserted that Jinnah left Congress not because of any disagreement regarding the Hindu-Muslim issue, but rather he could not embrace the new and more progressive ideology, and more importantly because he detested the masses of shabby dresses individuals speaking Hindustani who filled the Congress. His political philosophy was a higher order and better suited for a committee meeting or legislative chamber. He emphasized how the Balkan conflict and the Caliphate movement alienated Muslim and कांग्रेस किस तरीके से दोनों एक हो गए थे, उसके अंदर इस चीज़ को भी मेंशन किया है।
The Indian freedom movement of 1940s is depicted in the discovery of India as occurred. The assembly began to pay less attention to international development. It became increasingly, और कंपनी के बारे में बातें होती हैं. The entire country was in upheaval. Great leader is incarcerated. The younger generation played a significant role in India. So during the time of freedom struggle, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए जिनकी एज बहुत कम थी और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल को निभाया. Thousands of Indians were killed by the British authorities to put down the uprising. Uprising मतलब जो रिवोल्ट हो रहे थे, जो दंगे हो रहे थे, जो क्रांति बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए हज़ारों इंडियन मारे गए. एंड दे oppressed the Indians brutally, leading to the misery and degradation. बट होता है ना कि उस टाइम पे एक जो सबसे बड़ी नीड थी वो क्या थी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम. और आज हमें उसी फ्रीडम की कोई भी वैल्यू नहीं लगती है. In today's generation we are following the western culture. Everything is western. हमारे इंडिया में लैंग्वेज इंग्लिश को भी इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है. आई नो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आप भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैंने भी अपना एजुकेशन इसी में किया है. बट बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन को और इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी के कंपैरिजन डोमिनेंट में रखा गया है. आप उसके लिए आप डे टू डे लाइफ में देख लीजिए. तो बहुत मुश्किल से हमको ये आज़ादी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी आज चीज़ें बहुत हद तक, तो मैं नहीं कह सकती कि फेवर में है, थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी. एट द एंड ऑफ द बुक नेहरू फोकसिंग ऑन इंडियाज़ फ्यूचर, he anticipated the country's freedom shortly after providing a thorough overview of the Indian freedom struggle from when it started to when it acquired momentum and the movement's final year. ये जो बुक है वो एक्सप्लेन करती है इंडिया इज़ अ फ्लॉरिश टू मस्ट लर्न एंड टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इनोवेशंस की भी बात करती है फ्रॉम द वेस्ट वाइल द लेटिंग गो टू हिस्टोरिकल बैबेज. और इन सारे डेवलपमेंट की बात करती है ये बुक. मतलब कि पॉलिटिकल में देखो, जब उन्होंने जिन्ना की बात कर दी उसके बाद लीडर्स की बात हुई. हाउ मेनी लीडर्स आर देयर, द लीडर्स अगेन दे सेड कि हम बहुत ज़्यादा एनरिच थे, कल्चर थे कि हमारे यहाँ से क्या होता था, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारी चीज़ें, जो कीमती चीज़ें हम लोग फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट करते थे. और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे जो राजा थे उनकी जगह पे अपने जो मेंबर्स होते थे उनको लाए, ताकि वो आराम से इंडिया पे क्या कर सकें, राज कर सकें और एक्सप्लॉइट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें. कंक्लूज़न में अगर बोला जाए तो इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आइडियाज़ एंड इमोशन को एग्जिस्ट. आइडियाज़ है, इमोशन है, एंड प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ क्रिएटिव हारमोनी. एनीथिंग नेहरू राइट इज़ मेड enjoyable and engaging by this honesty's muse. Despite his love of language, he uses word sparingly in his writing. It is always lucid, unaffected, and limpid. Words are at the disposal, and he uses them to express his true ideas and experience most understandably. इसीलिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसको बोला जा सकता है द डिस्कवरी ऑफ नेहरूज लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कैथोलिक सेल्फ की. इन्होंने इसमें बहुत सारे वॉज इन ए रियल सेंस को प्रेजेंट किया है. ही लर्न व्हाट इंडिया वॉज एंड इमेजिन व्हाट शी वुड बिकम ड्यूरिंग द दैट पर्टिकुलर टाइम, कि इंडिया किस तरीके से है और इंडिया उससे पहले कैसी थी. इन सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन किया गया है. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर आप इंडिया को जानना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप इंडिया को जानना चाहते हैं वो भी उस टाइम पे, कि उस टाइम पे इंडिया कैसा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तो आपके लिए एक बेस्ट पार्ट हो जाता है. इस बुक को आप नॉर्मली जो है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो. अदरवाइज़ आपके सिलेबस के हिसाब से इतना काफ़ी है जितना मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है. और इससे एक्सेस में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें आपको जो याद रखना है. इंट्रोडक्शन ऐसे करेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1942 to 45.
अहमदानगर फोर्ट में जो आज के टाइम पे है उस टाइम पे था। इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बाय ब्रिटिश कॉलोनल एंड द बुक वॉज रिटन इज 1944 बट पब्लिश्ड इन 1946। और इसमें चीज़ें किस टाइम की हैं 1942 से 1945 तक की चीज़ें हैं। और ये बुक लिखी गई 1944 में एंड पब्लिश हुई, कब हुई पब्लिश? 1946 में। सब्जेक्ट की अगर हम इसमें मेनली बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, इंडियन कल्चर के बारे में है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इसको आप मेन हेडिंग्स बना सकते हैं, रिलीजियन इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियाज़ फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये एक अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, इतना भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं एंड यू स्कोर मोर मार्क्स। जितना भी स्क्रीन पे आपको विजिबल है, आप देखिए इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, है ना, किसी को भी ऐड करके ग्रुप बना लो और उसको एग्जिट करवा दो, उसके बाद सिर्फ आप रहो और उस पर लिख दो, जैसे MEG7। अब इस पूरी वीडियो में जितने भी स्लाइड मैंने यूज़ की है, स्क्रीन स्लाइड है, उन सबका स्क्रीनशॉट लो, आप ले सकते हो, मेरी वीडियोस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको वहाँ पे जाके सेव कर दो नाम के साथ। अब अच्छा क्या होगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में गए और आपने खोला और आपको सारे नोट्स मिल गए। मान लो इससे पहले मैंने एन अननोन इंडियन की बात की थी, जो कि नीरज सिंह चौधरी की ऑटोबायोग्राफी है, उसको भी ऐसे स्क्रीनशॉट करके रखो, उसके बाद नेहरू जी का डालो नाम, उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट रखो, उसके बाद नेक्स्ट। इस तरीके से आप देखेंगे आप अपने व्हाट्सएप को ही नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर इतने भी पॉइंट आपको याद रह गए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।